अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हमारा पहला लेक्चर जो अब आपके सामने आएगा। बेसिकली इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर इन विच आई विल discuss something about our course plan, some assessment techniques, examination techniques and course content. तो बेसिकली इस लेक्चर का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको आपके कोर्स और आपने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या होंगी, इसको आपने समझना है और मुझे आपको इस बारे में थोड़ा बहुत बताना है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम सैयद जुल्फ़िकार अली है और अगर मैं अपनी एकेडमिक्स के हवाले से बात करूं तो आई हैव डन माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एचएन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। आफ्टर दैट आई वेंट टू आदमजी कॉलेज, from where I have done my intermediate with A1 grade. I have also done my matriculation with A1 grade. Soon after that, I've admitted in BE Metallurgical Engineering from NAD University. I've done my Bachelor's of Engineering in 2020 from NAD University. After that, I've got admission in Masters of Engineering from in Materials Engineering from NAD University. So this is my academic history or academic details up till now. Let's talk about something which I have done extracurricular. So I've been a scout since 2005. I've done a proficiency badge in chemistry from Pakistan Sindh Boy Scouts Association. After that, I've also received a gold medal in scouting in 2015. I've participated in several national and international events representing Pakistan, province of Sindh, city of Karachi, and different platforms. Uh, I've also worked as a general secretary youth forum of Pakistan Boy Scout Association, in which I've represented Pakistan in almost about 100 conferences worldwide. Uh, Apart from this, I have represented Pakistan in 4 different countries, namely Sri Lanka, Bangladesh, India, and Iraq. And where I have won several competitions for Pakistan and got some prizes and appreciations as well. So this is a brief introduction of mine. We'll be discussing much more about my personal life, scouting life and personal experiences during classes and during class lectures when we have some examples of that too. So hope you will enjoy all of these. Now talk about course content. जैसा कि आपके इल्म में है बेटा कि हमारे जो प्रीवियस बुक थी केमिस्ट्री की, उसमें कुछ अपग्रेडेशन आई है। पहले हमारी जो बुक थी वो उसमें 10 चैप्टर होते थे 9 में और 8 चैप्टर होते थे मैट्रिक में। अब उस बुक को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब हमारे पास 9 क्लास की जो नई बुक आई है, उस नई बुक के अंदर 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स का इंडेक्स मैंने भी आपके सामने रख दिया है। It is about fundamental of chemistry, atomic structure, periodic table and periodicity, chemical bonding, physical states of matter, solutions, electrochemistry, and chemical reactivity. Currently, our nation and our curriculum heads are working on one nation, one curriculum psychology, which tell us about uh, throughout the country there is one curriculum. इसका क्या मतलब होता है कि मतलब ये बेटा कि अगर आप मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जाएं तो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की बुक्स जो हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगी और उनमें कुछ स्लाइड चेंजेस आपको मिलेंगे। बट
आजकल हमारी कंट्री के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि थ्रू आउट दी कंट्री एक ही, जैसे 9th केमिस्ट्री की अगर बुक है तो वो थ्रू आउट दी कंट्री एक ही बुक हो, एक ही बुक पढ़ाई जा रही हो। एग्जामिनेशन पैटर्न्स में और एग्जामिनेशन टाइम में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट बुक जो है वो एक ही हो थ्रू आउट दी कंट्री। तो कोशिश इस तरह की कर रहे हैं और इसके ऊपर काफी हद तक प्रोग्रेस हुई है। तो इसी वजह से हमारी 9 केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो भी चेंज हुआ है, और नई बुक का ये इंडेक्स अभी आपके सामने मौजूद है। आप जब बुक परचेज करेंगे तो आपने ये नया वर्जन ही केमिस्ट्री की बुक का परचेज करना है। ओल्ड वर्जन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ओके, सो हम कौन से चैप्टर सर इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा? आई हैव टू लुक इनटू इट अ बिट। तो हम जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं इनको लाजमी पढ़ेंगे, और इन 4 चैप्टर्स के अलावा कुछ एक आध चैप्टर हम मैट्रिक क्लास से भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बट नॉट कंफर्म कि हम मैट्रिक वाले सारे डिस्कस करते हैं या नहीं करते, हम सारे 9 वाले ही पढ़ते हैं। सारे 9 वाले तो नहीं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर हमारे, हम इसको तकरीबन 2 सेमेस्टर्स में अगर डिवाइड करेंगे तो पहले सेमेस्टर में हम इंशाल्लाह 4 चैप्टर्स को देखते हैं, जो बेसिक चैप्टर्स हैं, और फिर दूसरे सेमेस्टर में हम इंशाल्लाह मैट्रिक के कुछ चैप्टर्स को भी देखेंगे। इसके हवाले से अभी हम प्लानिंग करेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे। और अच्छा, अब अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा? जैसे कि आपके जानकारी में बेटा कि आप 9 क्लास का कोर्स पढ़ने वाले हैं, गो के आप 8 क्लास में हैं बट आप 9 क्लास का कोर्स पढ़ने वाले हैं। यानी कि बोर्ड पैटर्न पर आपकी जो पूरी पढ़ाई होगी पूरे साल, वो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा जैसा बोर्ड में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब पढ़ाई बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाली है बेटा, तो एग्जामिनेशन असेसमेंट भी जो है वो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि क्वेश्चंस विल आल्सो बी लिंक्ड विद बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जैसा बोर्ड एग्जामिनेशन का तरीकाकार होता है सवालात पूछने का, आपको सवालात भी उसी तरह से दिए जाएंगे, और आपसे जो जवाब की रिक्वायरमेंट मेरी होगी वो भी वही होगी जो बोर्ड में होती है। यानी कि आपको जो जवाब देने हैं वो भी बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देने हैं। अदर देन दैट आई विल नॉट कंसीडर योर आंसर। सही है, तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। पैटर्न क्या है हमारा, हमारे एग्जाम का? ये एग्जामिनेशन इज ऑफ 60 marks, in which 12 MCQs. Each MCQ carries 1 marks. Section B containing short question answers, in which you have to describe briefly whatever you have asked about. 15 questions are given in this section, and out of these 15 you have to answer 10. Each question carry 3 marks, which will make this section 30 of 30 marks. Up till now you have got 42 marks of your examination. After that there is section C, which is named as long question answers. And in this section you have 5 questions. Out of these 5 questions you have to answer 3 questions, and each question carries 6 marks, which will make this section as 18. So when you add up these marks, it will make total of 60. तो आपका जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, और उसके जो ब्रेकअप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपका तमाम तर पढ़ाई का तरीकेकार बोर्ड पैटर्न, बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो एग्जामिनेशन के जो आंसर्स होंगे वो भी बोर्ड के अकॉर्डिंग होंगे। Now here are my contact details, upon which you can contact me. This is my contact number. You can mail me up. You can go on Twitter, check my tweets, LinkedIn profile, and YouTube channel. I've been uploading videos continuously on my YouTube channel regarding life development, chemistry, personal development, personal grooming, and all sorts of other stuffs too. So you can contact me wherever you want. Uh, Something I've just missed is what about sir notes? What about written materials and etc. So I I will be providing written material to you all. So you can copy down those questions and answers in your school copy or school register. I will check each of your copy when we complete any sort of chapter. After completing of any chapter, I will check your copies, and students who haven't completed their work will be dealt with some specification. So please, in order to
be in good books. So be up to mark and complete your work timely. So you can gain more and more. तो काम आपका मुकम्मल होना चाहिए वक्त पर। हर चैप्टर के आखिर में कॉपी चेक होगी आपकी, और आप लोगों को नोट्स मैं क्लासरूम के जरिए या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रोवाइड करूंगा। वो नोट्स आपने अपनी कॉपी में कॉपी कर लेने हैं अपने इंक पेन के जरिए, और फिर मैं उसे चेक करूंगा। क्लासरूम में मैं लिखने वाले काम ना कराऊं शायद। क्लासरूम में मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा टॉपिक्स की, एंड यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन क्लासेस, बिकॉज आई विल बी assessing you with the mind mapping assignments, mind mapping problems, brainstorming, etc. So you all have to be up to mark of that on that. क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो ही आप मेरे असाइनमेंट्स और इन चीज़ों के आंसर्स कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो होप सो सारी बात आपके लिए क्लियर है। मजीद कोई बात रह नहीं जाती। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यू हैव गॉट माय व्हाट्सएप नंबर टू। सो बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।